Mohit and Moni. Welcome to Tele Tadka. Hi, thank you. Hello, How are you? I'm good. Introduce yourself, Mohit. I'm Because this is Mohit the and first I'm time. playing Lord Yeah. Shiva, Mahadev, Devon ke Dev. I'm Moni and I'm playing Sati, as you can see me in the costume. Okay, so what is the dance sequence is all about? You want to see? No, ladies first. Well, the dance sequence is about Sati. Basically, she's very, very sure about her love for Shiva, and she this time decides that because it's Vasantotsav or it's a festival of color and flowers and lights, and so she wants to call upon Shiva. So वो इस बार ठान लेती है कि वो नृत्य के माध्यम से उन्हें बुलाकर रहेगी. So that is what this sequence is all about. Intercut वाला ये बताइए. Well, आप क्या as कर रहे हैं? बिल्कुल Lord Shiva के angle से it's that Sati's dance has forced him to leave his yog nidra and come and join her. So he's here following her steps, passionately dancing with her and trying his best to match steps with her. Okay, Moni, as we know that you are already trained dancer. So how much time you have taken for rehearsing? I do. I actually take my rehearsals very very seriously. क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी डांस फॉर्म को सीखने के लिए या एक रूटीन को अपना बनाने के लिए आपकी मसल मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत नेसेसरी होती है. आई रिहर्स येस्टरडे एंड डे बिफोर. सो 2 दिन हम लोगों ने अच्छी रिहर्सल की. Okay, and what about you, Mohit? वेल परसों मैं बहुत प्रेशर में था. मुझे मौनी रॉय के साथ डांस करना है. बहुत प्रेशर था मुझे. कल में भी बहुत प्रेशर था मुझ पर. सब लोगों के फ़ोन आ रहे थे दैट यू हैव टू मैच स्टेप्स विद हर, व्हाट आर यू डूइंग.
So I did have Davar Chawanprash in the morning, and Oh my God. then at night, in the evening, I rehearsed for 3-4 hours, and it was really, really kind and sweet of her. She waited for some more time, and she gave me a lot of support. So I wouldn't think it would have been possible without her support. No, he's being very, very modest. He rehearsed very, very well, and he's doing it very, very good. So you will see. Okay, so after this, what Sati thinks after this, will Shiv be little norms towards Sati? सती को ऑब्वियसली ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो डांस कर रही है. बट अब पता नहीं कैसे स्टोरी अनफोल्ड कैसे होने वाला है. वो अभी तक हमारे स्क्रीन प्लेस नहीं आया, तो हमें भी नहीं पता. Same, I have no clue about it, but as of now, Shiva is mesmerized by Sati. That's it. Okay. So Mohit, tell us, by playing this mythological character, how much you are enjoying as a Shiv? Well, I am definitely enjoying playing Lord Shiva because I am more connected to him, trying to connect with him as a person, not as a Lord or as a mythological series. I'm not keeping that things in mind. I'm just trying to play him as a Shiva, as a human being, how he would react in any particular situation, and that's it. And I'm just having a great time and enjoying myself. And he works out 3 hours more than he usually used to. Yeah, I'm trying my best. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, Rakshinda ji, welcome to Tele Tadka. Thank you very much. So, Rakshinda ji, tell us about your role in Devo Ka Dev Mahadev. Okay, so we start off with the name of the character. The character is called Madnike. देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री ये है दैट शी इज़ एक्चुअली समवन हु टॉट सती टू डांस. म्यूज़िक और डांस की टीचर है. शी इज़ समवन हु कम इन टू द पैलेस आफ्टर अ ईयर. 1 साल के बाद जब वो आती है, सती को देखती है, उसे लगता है सती बहुत बदल चुकी है. उसे देखते ही, बिकॉज शी इज़ अ वुमन ऑफ द वर्ल्ड, शी नोज अ लॉट अबाउट पीपल, शी रीड्स पीपल वेरी वेल. उसे एहसास हो जाता है कि सती को प्यार हो गया है. व्हेन शी फाइनली रियलाइजेज हु द पर्सन इज़ जिससे सती को प्यार हुआ है, शी इज़ वेरी टेकन अबैक, क्योंकि दक्ष के जो राज्य है उसमें सभी के सभी जो शिव हैं उनको नहीं मानते हैं, उनको भगवान का स्टेटस नहीं देते हैं, उनके बहुत खिलाफ हैं. यहाँ तक कि दक्ष ने शिव को श्राप भी दिया हुआ है. एंड शी फील्स रियली बैड बिकॉज शी इज़ कॉन्स्टेंटली एनकरेज सती टू शो हर फीलिंग्स, टू गो एंड बी इन लव एंड टू मेक श्योर दैट शी फॉल्स इन लव विद अ नाइस पर्सन. और अब उसको रियलाइज़ होता है कि जिसके लिए वो एनकरेज कर रही थी वो तो शिव है. अब प्रॉब्लम हो गया है, एंड व्हाट वी आर शूटिंग टुडे इज़ व्हेन सती इज़ एक्चुअली एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर शिव. उसके बाद क्या होगा, that is going to be a huge dramatic thing, and for that you'll have to go in there and watch. So what is your reaction towards Sati's dance? Like Sati's dancing with Shiv. So how do you feel? मदनिके एज अ कैरेक्टर इज़ ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने सती को सिखाया है कि उसे प्यार करना चाहिए, सिखाया है कि डांस की क्या इम्पोर्टेंस है, और आज वही डांस के ज़रिए वो अपने प्यार का इजहार कर रही है. एंड शी ऑब्वियसली बीइंग अ भक्त ऑफ शिव is very pro the whole relationship, but she'd also realize what the ramifications of the whole thing can be. इसलिए वो सती को रोकने की भी कोशिश करती है, पर उसको पता है कि सती जिस तरह से प्रेम करती है शिव से, उसको इस वक्त कोई भी नहीं रोक सकता. Obviously she is happy कि सती का प्यार इतना पावरफुल है कि वो शिव को भी खींच लाया है. Now what will happen is something that not just सती but even मदनिके will have to deal with, क्योंकि मदनिके के बढ़ावे पे सती का प्यार यहाँ तक पहुँचा है. Okay. So Rakshinda ji, first time you are playing a mythological character. How do you feel about it? I feel heavy. I feel very heavy. क्योंकि इतनी सारी ज्वेलरी है. मैंने शायद अपने कलेक्टिव पूरे करियर में इतनी ज्वेलरी नहीं पहनी होगी जितनी एक बार में ही यहाँ पहननी पड़ती है. देयर इज़ लाइक शोल्डर पैड, वो जो यहाँ बाजूबंद थे वो मैंने ड्रॉप कर दिए, किसी को नज़र नहीं आया, सो आई क्विकली ड्रॉप देम. फिर रिंग्स थी बहुत सारी हाथ में, वो भी मैंने निकाल दी. पायल है जो दिखाई नहीं देती, तो वो मैंने पहनना बंद कर दी. देयर इज़ अ ज्वेलरी विच इज़ एट द बैक ऑफ दिस चोली विच समटाइम्स गेट सीन इन अ शॉट, सो आई वेयर इट ओनली देन बिकॉज इट हैज़ दीज ह्यूज हुक्स जो पोक करते रहते हैं. तो आई रियलाइज्ड being born in that era was not much fun. लोगों को बहुत ज़्यादा श्रृंगार करना पड़ता था, उनका आधा दिन उसी में निकल जाता था. दैट्स वाई आई रियलाइज वो सुबह के 5 बजे क्यों उठते थे, क्योंकि उनको सुबह 5 से लेकर सुबह के 10 बजे तक सिर्फ तैयार होने का वक्त लगता था. आफ्टर दैट दे यूज्ड टू गो टू स्लीप अर्ली बिकॉज दे यूज्ड टू गेट सो टायर्ड वेयरिंग ऑल द ज्वेलरी. दैट वाज द रीजन बिहाइंड द लाइफस्टाइल दे रेड एट दैट टाइम. So what are the difference in normal, Saas Bahu Saga serials and this mythological serials, mythological characters? हल्का सा फ़र्क शायद लैंग्वेज में है,
और इस बात का भी फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न टच नहीं रख सकते, आप उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं रख सकते. लाइक आई वाज टॉकिंग टू द डायरेक्टर ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, वो कह रहे थे कि उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि उन लोगों के बिहेवियर का कोई डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास. सो इट्स ऑल गेस वर्क दैट वी आर डूइंग. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको मैच कर सकें कि जिस तरह से उस वक्त वो थे. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. वी डोंट हैव अ डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट. हमने कोशिश की एंड आई एम होपिंग वीव मैनेज्ड टू डू अ डिसेंट जॉब. Okay, so what you have enjoyed the most, the Saas Bahu kind of serial or this role? I've just enjoyed the fact that I've had the ability to play so many different characters. Not the ability, rather I would say the opportunity. आप जब एक कैमियो करते हैं तो आपको पता है कि आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक उस कैरेक्टर में रहेंगे, और इस वजह से शायद आपका एंथुजियाज्म जो है वो कम नहीं होता. On the other hand, when you're doing like a full-fledged role, आप साल, 2 साल, 3 साल तक उस कैरेक्टर को कर रहे हैं, तो उस कैरेक्टर में आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट है. सास बहू का ये प्लस पॉइंट था दैट इट वाज मोर अ कैरेक्टर ऑफ टुडे, अ वुमन ऑफ टुडे. इसका प्लस पॉइंट ये है दैट इट्स a woman I have never had the opportunity to meet and never will have the opportunity to meet. So I think I've just been lucky that I've managed to play different characters. Okay, thank you so much, Rakshanda ji. My pleasure. Thank you. Hi, my name is Karan. I'm basically from Punjab, Ludhiana. Okay, महादेव में मैं राग मालकोश बना हूँ. राग मालकोश जी उत्तम हुए थे जब शिव जी भगवान के सामने, शंकर भगवान के सामने जब सती जी को जलाया गया था, तो देवी पार्वती ने उनको शांत, उनका क्रोध, उनका गुस्सा शांत करने के लिए राग मालकोश को जन्म दिया था ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए. और बस बाकी मेरे को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया शूट करके. ये सारे कलीग, सारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, एंड मतलब सिंस ये सेकंड या थर्ड मेरा है तो इट्स अ वेरी गुड मतलब एक्सपीरियंस टू स्टार्ट. हेलो, मेरा नाम प्रिया है, प्रिया भानुशाली. मैं गुजरात से हूँ और महादेव सीरियल में रागिनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके. मौली जी, रक्षंदा जी, मोहित, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ के डायरेक्टर निखिल सर बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव करते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. हाय, माय नेम इज़ संजय तिवारी. मैं आसाम से हूँ, महादेव सीरियल कर रहा हूँ और मैं राग बना हूँ. राग में मेरे कैरेक्टर है मेघ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके. एवरीवन सभी अच्छे हैं, रक्षंदा मैम सभी हमें सपोर्ट करते हैं. कुछ हम गलती करते तो हमें समझाते हैं. उनके साथ हम जब डायलॉग्स देते हैं तो हमें नर्वस फील होती है, लेकिन वो अपने तरीके से हमें समझा कर फिर हमारे साथ कोऑपरेट करके बहुत अच्छा हो जाता है हमारा. और हम जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे. हमारी अभी 20 या 25 डेज़ हो गया शूट करते हुए. काफ़ी मज़ा लग रहा है, काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा है. थैंक यू. हाँ, देवों का देव महादेव. मेरा नाम ओम उत्तम है. मैं एक भैरव का रोल कर रहा हूँ इधर. तो भैरव एक राग है, अच्छा लग रहा है करने में. ये सब ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहन के अच्छा लग रहा है. हाँ, गेटअप अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा हूँ ना? सो नाइस. हाँ, थैंक यू. मैं इंदौर से हूँ और यहाँ पर राग रागनियाँ बने हुए हैं, सारे गामा पादा निसा. सभी के अपने अपने कैरेक्टर हैं. जैसे मैं धनुश्री रागनी, और मेरे जो राग हैं दीपक, भैरव राग, हिडोल, सभी के अपने अपने हैं, और काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंजॉय करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा. और यहाँ का स्टाफ सभी लोग बहुत अच्छे हैं. निखिल सर बहुत अच्छे से काम करते हैं. थैंक यू. जी, मेरा दीपक, जैसे जी ने कहा, सही कहा, हम सब राग रागिनियाँ हैं, सारे गामा पादा निसा. उनमें से मैं एक दीपक हूँ जो मैं जैसे मेरे राग खुलते तो ऑटोमेटिकली दीपक जल जाते, और बस वही आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा आगे. हाय, मेरा नाम गीत है और मैं श्री राग की वाइफ ऐश्वरी देवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. थैंक यू. एक्चुअली जो जिसको बजाना आता है उसी हिसाब से दिया गया है. हाँ, मैं बचपन से तबला बजाता आया हूँ, तो मुझे मृदंग बजाने के लिए दिया गया है. कभी कभी डांस भी करना पड़ता है, तो डांस. और अभी थोड़ी देर में जो शूट होने वाला है वो मृदंग बजाने वाला हूँ मैं. तो ऐसे ही कुछ चल रहा है अभी तुम बोलो, तुम क्या बजाने वाले हो भाई? आज का जो सीक्वेंस है ये डांस का सीक्वेंस है, और हम शिव के भक्त हैं, तो हमें शिव की जो संगीत है वो काफ़ी प्यारी है. तो हम उसको ही लेके उत्साह रहते हैं कि उनका गाना गाए, हम उनकी धुन बजाए और वो हमारे समक्ष आए और डांस करे. वही हमारे अंदर रहती है. तो आज हम वही राग पैदा कर रहे हैं अपने अंदर की,
अब फिर से संगीत को पैदा कर रहे हैं ताकि शिव यहाँ पे आए और सती के साथ नृत्य करें।